Good morning, students. Yesterday we have seen this example, annual cash flow analysis example. Now we come to the next point. Okay, so that next point is infinite analysis period. Yes, annual cash flow analysis have many time period. In that, it is one that is infinite analysis period. Infinite analysis period means what? If the project is started and we have not decided this project is completed in how many years. Yes, so that those period is called as infinite analysis period. Yes, so here some examples are given to you. So infinite period that may be for government analysis, service and maintenance conditions, road, dam, pipeline, uh, equipment, forklift, electrical motors. So if that project is based on these items, at that time analysis period is not defined. Yes, so it is called infinite analysis period. Yes, so we will see. So okay, so before that, this period is infinite, and that period is divided into equal parts. Yes, and then we have done calculation. So for that we will see one example. So here this is the example. A city plans pipeline to transport a water from distant warehouse. A pipeline cost 8 millions and will have expected life of 70 years. The city expects to keep water line in a service indefinitely. What will be the capitalized cost, or you can say present worth cost, for 7% interest? Yes, so here present worth amount is given to us, number of years are also given to us, percentage means interest is given to us, and we have to find out capitalized cost. So we have a formula: A equal to P in bracket I in bracket 1 plus I raised to n divided by 1 plus I raised to n minus 1, and bracket complete. Now based on different variables we are putting the values of on appropriate variables. Yes, so here P means present value. What is the present value? That is 8 millions. Yes, so here we are writing down 8 in bracket. We have given a percentage, that is 7. Yes, so that's why we are written 0.07 in bracket 1 plus 0.07 raised to n. N means its life is 70 years. So here we have written 70 divided by 1 plus 0.07 raised to 70 minus 1. So after calculating all these things we are getting 0.564 million. Yes, so here that is the value of A. Yes, and we have to find out capitalized cost. So the formula of capitalized cost is A divided by I. Yes, so we have received the value of A, that is 0.564. So we are writing 0.564 divided by I, that is interest. So here we are getting capitalized cost, that is 8.070 millions. Yes, now this example is for infinite time period, so its formula is this. We have to use this formula for finding out the value of A and for finding the capitalized cost. So how can we find out this is how can we know? We have to apply the formula of infinite period. So see second line, the city expects to keep water line in a service indefinitely. So what will be the capitalized cost?
So for that we have to find out capitalized cost. Okay, now our next point is internal rate of return. Yes, so what is internal rate of return? So here many formulas are given to you. What is internal rate of return? We will see first formula. So internal rate of return is an interest rate at which present worth and equivalent uniform annual worth are equal to 0. Okay, this is a simple definition. Yes, this definition explains us present worth value and equivalent annual worth value, they are equal to 0, means we are getting internal rate of return value. Yes. Last definition shows it is an interest rate at which benefits are equivalent to cost or present worth is 0, means whatever the benefit we are getting or present worth value, that is equal to 0, it is a interest rate. Okay, we will see interest rate of return concept with the help of example. Okay, so here a formula is given to us. So here cash flow series for unknown value of internal rate of return are solved. So here first is PW of benefits minus PW of cost which is equal to 1. This is the first formula. मतलब प्रेजेंट वर्थ का जो बेनिफिट हमें मिलता है उसमें से प्रेजेंट वर्थ की कॉस्ट हम डिडक्ट करेंगे. सो वी आर गेटिंग आंसर एज अ 1. यस. Second one is PW of benefits divided by PW of cost which is equal to 1. Here present worth which is equal to net worth which is equal to 0. EUAW मतलब equivalent uniform annual worth. EUAB means equivalent uniform annual benefit, and EUAC equivalent uniform annual cost. Yes, so here annual worth means whatever the benefit minus cost which is equal to 0. Yes, so here we have given the formula. We will see using example. First example of internal rate of interest, that is engineer invests rupees 5,000 at the end of year for 40 years. If engineer wants 1 million in saving at retirement, what interest rate must be the investment earn? ठीक है, एक engineer है, वो 40 साल के लिए वो 5,000 है वो every year invest करता है. अब इंजीनियर को 1 मिलियन चाहिए. जब वो रिटायर होता है तो उसको एज ए सेविंग उसको 1 मिलियन चाहिए. तो कितना इंटरेस्ट रेट है वो इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर सकता है. ठीक है, तो अभी नेटवर्थ मतलब अभी कुछ नहीं है, सो इट्स वैल्यू इज़ 0. यस, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है कि क्या करनी है फॉर्मूला. तो इंटरेस्ट रेट है वो तो सेम है, तो यहाँ पे नेटवर्थ है वो 0 है. अब यहाँ पे क्या बोला है, जो पहली वाली जो फॉर्मूला थी ना वही हमें यूज़ करनी है कि पहले वो 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है मतलब वो अपने बिजनेस में डाल रहा है, मतलब यहाँ पे सेविंग कर रहा है. तो वो अभी उसके जेब में से वो वैल्यू है वो डिडक्ट होती है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे -5,000 लिखा है. इन ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाई i ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 1 मिलियन. यस, तो यहाँ पे 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 10 लाख विच इज़ इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे प्रीवियस जो फॉर्मूला है वो सिंपल हमारी फॉर्मूला है. ठीक है, बेनिफिट और कॉस्ट. ठीक है, तो उसकी मतलब प्रेजेंट वर्थ अभी क्या है विच इज़ इक्वल टू नेट वर्थ विच इज़ इक्वल टू 0. ये सिंपल फार्मूला है, ये हमें बाद में हम यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट भी दिया है तो इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाई i विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम एलाबरेट करके कैलकुलेट करेंगे
तो हमें आई की वैल्यू है वो 0.07 या 7% मिलती है। देखो अब यहाँ पे जब आई की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 अब देखो 1 + i⁴n, n मतलब 40 है। ठीक है, तो 1/40 + i⁴40 - 1 डिवाइडेड बाई आई विच इज़ इक्वल टू 200। ठीक है, मैं लास्ट फॉर्मूला बोल रही हूँ। ठीक है, तो 1/40 मतलब 1 ही होगा, प्लस i⁴n मतलब i⁴40 - 1, तो 1 है वो चले गए, +1 - 1, ठीक है, तो वो 0 हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा, i⁴40 डिवाइडेड बाय आई विच इज़ इक्वल टू 200। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे i⁴40 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि i⁴1 इंटू i⁴39, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो हमें जो नीचे i⁴1 डिवाइडेड बाई आई है तो वो एक आई निकल जाएगा। फिर हमें लॉग की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे लॉग 200 डिवाइडेड बाई 39 करना पड़ेगा, सामने जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा आंसर 0.07%। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंक्रीमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो से अगर ज़्यादा आता है, ठीक है, तो हम वो जो प्रपोज़ल है तो उस प्रपोज़ल को हम एक्सेप्ट करेंगे। बट इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लो है उससे एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है, मतलब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो वो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो से लोअर उसकी वैल्यू आते हैं, तो हम इस जो प्रपोज़ल है, ठीक है, जो हमारा प्रपोज इन्वेस्टमेंट, मतलब हम सोच रहे हैं कि इस बिज़नेस में हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो अगर लो आता है तो हम क्या करेंगे, तो उस प्रपोज़ल को हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो उसका कैश फ्लो, मतलब दो कैश फ्लो की हमें कंपैरिजन करनी है। एक हमारा जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है उसकी कंपैरिजन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के साथ करनी है। अगर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की वैल्यू हमारे एग्जिस्टिंग कैश फ्लो की वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे कि उस प्रपोज़ल मतलब उस प्रपोज़ल मतलब हम इसमें हम हमें हमारे बिजनेस की मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम आती है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल एनालिसिस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू सर्टेन इश्यूज़। तो वो इश्यूज़ क्या है, तो फर्स्ट इश्यू है past cost already suffered as a sunk cost and cannot be recovered through undoing the decision। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी कि पास्ट में जो कैश कॉस्ट था तो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो अभी हम सफ़र कर रहे कि एज ए शंक कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू है वो रिकवर्ड नहीं हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम है इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो सेक्रीफाइस द कॉस्ट फॉर यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, एज अ अपॉर्चुनिटी हम हमारे इन्वेस्टमेंट है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि लॉस भी आ सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, थर्ड है एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू आइडल कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारा कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मशीन है वो 10 आवर्स वर्क कर रहा है, बाकी के आवर्स है वो आइडल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिशनल, तो ऐसी मतलब जो आइडल रहता है तो वो हमारा डिसएडवांटेज है कि उस टाइम पे हम उसको वर्क करवा के, मतलब हमारा जो मशीन है उस पर हम वर्क करके एडिशनल इनपुट्स मतलब एडिशनल प्रोडक्ट्स है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं करता है जब मशीन आइडल रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो भी हमारा एक डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, कैश फ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट आर क्लब्ड विथ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे जो नए नए हम इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो एग्जिस्टिंग मतलब जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें हम क्लब कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कई बार लॉस भी होता है, कई बार प्रॉफिट भी होता है, पर जब लॉस होता है सो दैट इज़ अवर डिसएडवांटेज, ठीक है। लॉस होगा तो क्या होगा, जो हमारा इंक्रीमेंटल एनालिसिस है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कैश फ्लो से कम आएगा, ठीक है, तो हम ऐसी प्रपोजल को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंक्रीमेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इंक्रीमेंटल एनालिसिस है वो वर्क कर रहा है। तो ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग 50,000 पार्ट्स currently with ₹60 per unit. Same part is available in market with 56 rupees per unit. The company management thought that purchasing outside appears cheap. At the same time, company management observed that a plant has idle capacity that can manufacture 10,000 additional units. Hence, company management has asked the account department to find the cost per unit of additional production. Also need to know that which option, manufacturing of additional unit in-house or purchasing from market will be beneficial, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल का क्या एक्सप्लेन करा है कि एक ऑटोमोबाइल वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 15,000 पार्ट्स है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है और हर एक पार्ट की कीमत 60 रुपीज़ है, ठीक है, मतलब पर यूनिट उसकी कीमत है 60 रुपीज़। अब ये ऐसे ही सेम पार्ट मार्केट में 56 रुपीज़ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सोचता है कि बाहर से ही अगर हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमें 60 में पड़ता है और बाहर 56 रुपीज़ में मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, बाहर से ख़रीदना चाहिए कि हमें कम, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा मशीन है वो कम दाम में हमें वो पार्ट्स है वो कम रुपए में मतलब कम पैसे में हमें दे, ठीक है। तो उसी टाइम पे वो सोचता है कि जब भी हमारा मशीन आइडल रहता है तो उस टाइम पे हम 10,000 एडिशनल पार्ट्स है वो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब कंपनी है वो उसके अकाउंट डिपार्टमेंट को बोलता है कि भाई एडिशनल जब यूनिट हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या रखनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो नीड टू नो, और वो कंपनी ये भी जानना चाहती है कि अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी फैक्ट्री में वो पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ेगा कि मार्केट में से हम परचेज़ करके लाए वो हमें सस्ता पड़ेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट ब्रेकअप पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी जब 50,000 पार्ट्स है वो मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसकी कॉस्ट है वो 3 पार्ट में बाइफरगेट की है, ठीक है। एक है मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल चाहे तो उसकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट मतलब जब वो जो लेबर कॉस्ट जो लगती है वो, और तीसरी है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, बाकी के क्या अदर एक्सपेंसेस लगते हैं तो वो, तो 30, 20 एंड 10 तो तीनों का हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 60 रुपीज़, जो हम 60 रुपीज़ में हम पूरी एक पर यूनिट की प्राइस है, ठीक है। तो ये 60 रुपीज़ को 3 कॉस्ट में बाइफरगेट किया है, मटेरियल कॉस्ट दैट इज़ 30, लेबर कॉस्ट 20 एंड ओवरहेड कॉस्ट दैट इज़ 10 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट पर यूनिट फॉर 50,000 पार्ट्स, तो वो 60 में है। अब कॉस्ट पर यूनिट फॉर 60,000 पार्ट्स, अब हमें ऐसा बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन कि हमें एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स हमें एडिशनल मैन्युफैक्चर करने हैं, कब, जब
हमारा जो मशीन है वो आइडल रहता है, मतलब आइडल मतलब कुछ काम नहीं करता है, फ्री है, तो उस टाइम पे हमें 10,000 एडिशनल पार्ट्स अभी मैन्युफैक्चर करने हैं। तो 50,000 प्लस 10,000 तो होगा 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सेकंड पॉइंट, कॉस्ट पर यूनिट फॉर 60,000 पार्ट्स। ठीक है, सो दैट इज़ ₹50 लोअर देन ओरिजिनल पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, हमने डिसाइड किया भाई 50 रुपीज़ में टोटल जो 60,000 पार्ट्स है उसकी कीमत हम लगाएंगे 50 रुपीज़। तो इस 50 रुपीज़ को हमने बाइफरगेट किया कि भाई मटेरियल कॉस्ट होगी 25 रुपीज़, लेबर कॉस्ट होगी 18 रुपीज़ एंड ओवरहेड कॉस्ट होगी 7 रुपीज़। ये हमने डिसाइड किया है। ठीक है, अब क्या है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, जो एडिशनल जो हमने यूनिट्स बनाए हैं, कितने बनाए हैं 10,000, तो मटेरियल कॉस्ट तो 10,000 इंटू 25 तो 2,50,000, लेबर कॉस्ट रहेगी 1,18,000, ओवरहेड कॉस्ट रहेगी 70,000। ठीक है, तो हमारी टोटल कॉस्ट होगी फॉर 10,000 यूनिट्स के लिए, तो वो होगी 4,38,000 रुपीज़। ठीक है, अब बाहर जो मिल रहे हैं 10,000 यूनिट्स 50, मतलब बाहर जो हम सेम हमारे जैसा ही पार्ट बाहर मार्केट में 56 रुपीज़ में मिल रहा है। यस, सो 10,000 इंटू 56 करेंगे तो हमें मिलेगा 5,60,000। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हुई, सो यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, तो यहाँ पे होगा 5,60,000 माइनस 1,38,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 1,22,000 रुपीज़ मिलेगा। सो in-house मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिशनल यूनिट्स हैव इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग पर यूनिट, सेल्फ सफिशियंसी ऑफ अ प्रोडक्ट, लीस्ट डिपेंडेंसी ऑफ आउटसाइड रिसोर्सेज। ठीक है, बाहर मिलता है 5,60,000 में मिलता है वो, और हमारा प्रोडक्शन कितने में होता है 4,38,000 में, मतलब कम में होता है। ठीक है, तो 1,22,000 रुपीज़ कम देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इतने उससे मार्केट में जो 10,000 पार्ट्स की वैल्यू होती है 5,60,000, तो हमने उससे भी कम दाम में बेचा, तो 1,22,000 का हमें प्रॉफिट मिलेगा और सामने कस्टमर को ये मिलेगा, तो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, तो तो हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, हम हमारा इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके बेस पे ही हम अगर इन हाउस प्रोडक्शन करके 50 रुपीज़ में हम हमारे जो पार्ट्स है वो बेचेंगे, सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंक्रीमेंटल एनालिसिस है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।